باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید کی بعض صورتوں میں پائے جاتے ہیں، بالکل شروع میں۔ ان کا کیا مطلب ہے اور کیوں یہ قرآن کی بالکل شروع کی صورتوں میں پائے جاتے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا خیال رہے، اتنا ذہن نشین رہے انسان کے کہ ان کے معنی نہ جاننے کی وجہ سے قرآن سے ہدایت لینے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے حروف مکہ کے جو شاعر لوگ ہوتے تھے وہ اپنے کلام میں ان حروفوں کا، ایسے حروفوں کا استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات سے واقف تھا۔ ان لوگوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس طریقے کے حروف کا استعمال کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مکہ میں کسی شخص نے کبھی ان حروف کے بارے میں کوئی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ ان ایسے حروف سے واقف تھے وہ لوگ، اور اس طریقے کے اپنے کلام میں، اپنی کتابوں میں وہ ان چیزوں کا استعمال کیا کرتے رہے ہوں گے۔ تو یہ حروف مقطعات تھیں جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب آگے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا ایک سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیاوی مصنفین جو ہیں وہ خود اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں شک اور شک کی گنجائش ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں کسی طریقے کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید ویسے تو سراسر ہدایت ہے، لیکن ہدایت صرف ان لوگوں کو ملنی ہے جو پرہیزگار ہیں، جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو نیک راستے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، انہی کے لیے ہم اپنے راستے کھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، رہنمائی ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، انہی کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ورنہ انسان سمندر کے کنارے میں پیاسا مر جائے گا، کیونکہ وہ پیاسا اس لیے مر جائے گا کہ سمندر سامنے ہے، اس کے باوجود بھی اپنی پیاس نہیں بجھا رہا ہے اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہے ریگستان میں، جبکہ سمندر اس کے سامنے ہے۔ تو قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس سے آدمی ہدایت لے سکتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید بھی صرف ان لوگوں کو ہدایت دے گا جو اس سے ہدایت لینا چاہیں گے، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اور غالباً قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جس کی تشریح ہی سمجھ لیجیے علامہ اقبال کی شعری، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اس سے، ورنہ قرآن کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آگے فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ پہلی شرط تو یہ تھی کہ وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ اور ان کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، ان کے اندر تڑپ ہونا چاہیے، خواہش ہونا چاہیے،
परहेजगारी की, इस्लाम सीखने की, कुरान से हिदायत हासिल करने की, अल्लाह की तरफ आने की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की, ये सारी तड़ाप और जुस्तजू और उमंग और बलबले उसके अंदर पाए जाते हो, तभी वो ये कुरान उसको हिदायत रहनुमाई करता है। अब उसके लिए पहली चीज ये है कि वो गैब पर ईमान लाता हो। गैब क्या है? यानी कि वो मानता हो कि अल्लाह ताला है और ये कायनात उसी ने बनाई है, इस कायनात का पैदा करने वाला वही है, इसको बनाने वाला वही है, मेरा वजूद में लाने वाला वही है, मेरी हस्ती को पैदा करने वाला वही है, इस दुनिया का एक एक चीज का मालिक और मुख्तार अल्लाह ताला है, सारी चीजें उसी के कब्जे कुदरत में हैं। वो अल्लाह को माने क्योंकि अल्लाह को उसने कभी देखा नहीं और अल्लाह गैब है। और जन्नत पर ईमान, दोज़ख पर ईमान, क़यामत के आने पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, ये सारी गैब की चीज़ हैं। ईमान लाने के लिए इंसान को इस गैब की चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, तभी उसे कुरान से कुछ हिदायत मिल सकती है। क्योंकि जब तक वो गैब पर ईमान नहीं लाएगा वो कभी भी दीन के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता, ना वो कुरान से हिदायत पा सकता है। नेक इंसान बन ही नहीं सकता जब तक उसका ईमान आखिरत पर न हो कि मरने के बाद एक बार मुझे अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है, अल्लाह मुझसे सवाल जवाब करेगा, मैं जो जिंदगी गुजार के जा रहा हूँ उसके बारे में मुझसे पूछेगा। तो ये चीज़ जो है उसके अंदर होना चाहिए कि वो गैब पर भी ईमान रखता हो, इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखता हो। क्योंकि है कि मुसलमान होने के लिए 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिसमें अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, ये बहुत सी चीज़ें उसमें पाई जाती है। तो इंसान को कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए गैब पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद फरमाया और फिर नमाज कायम करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें पर ईमान ले आया, वो गैब को उसने मान लिया और परहेजगारी का भी उसने लिवादा ओढ़ लिया, परहेजगार बनना चाहता है, नेकी के रास्ते पर चलना चाहता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों पर ईमान लाने के लिए कहा है उन चीज़ों पर वो ईमान भी ले आया है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने पहला शर्त बताई कि आप तुझे अमली नमूना पेश करना है, जिसको नमाज कहते हैं। सब अव्वलीन फर्द इंसान पर जो आयद होता है ईमान लाने के बाद वो होता है नमाज। जब इंसान नमाज ही नहीं पढ़ता है तो वो अपने दावे ईमान में झूठा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र किया। तो वो इंसान इन दुनियावी रजिस्टर में तो मुसलमान हो सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अमलन काफिर लिखा जाता है जो नमाज कायम नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहला ईमान लाने के बाद जो हुक्म, जो अमल का हुक्म अल्लाह ताला देता है वो है कि नमाज कायम करता है। दिन में इंसान 5 मरतबा अपने ईमान को ताज़ा करता है और अल्लाह के सामने झुककर, अल्लाह के सामने जाकर, अल्लाह के हुजूर पेश होकर अल्लाह से कहता है कि अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। ये कुरान मजीद की शुरू में ही बोला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। ये अलग बात है कि लोग ये पढ़ने के बावजूद भी दूसरी बुजुर्ग हस्तियों से भी मांगते हैं, कब्रों पर भी जाते हैं, मज़ारों पर भी जाते हैं और पता नहीं क्या क्या रास्ते उन्होंने इख्तियार कर लिए हैं। ये अलग बात है। लेकिन नमाज में वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही पढ़ता है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ या अल्लाह और तुझी से मदद मांगता हूँ, या तेरी ही इबादत करता था और तुझी से मदद मांगता था, या तेरी ही इबादत करूँगा और तुझी से मदद मांगता रहूँगा। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये अलग बात है वो इंसान अपनी नादानी की बिना पर किसी दूसरी हस्तियों से भी मांगता फिरे, लेकिन हकीकत में उसका मालिक और अल्लाह ही ताला और उसी की इबादत से करनी चाहिए। तो ईमान लाने के बाद सबसे पहली शर्त यह है कि वो नमाज कायम करे और जो रिस्क हमने उसको दिया है उसमें से खर्च करे। अब तीसरी बात यह आ गई कि जो रिस्क हमने उनको दिया है, जो माल अल्लाह ताला ने दिया है वो उसमें से खर्च करे। यानी कि माल अल्लाह ताला कह रहा है ये माल हमने दिया है, यानी तुम्हारा नहीं है, ये हमारा ही माल है, हमने दिया है तुमको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, हमको वापस ले ले, हम चाहें तो इसे वापस ले लेंगे। तो जब जिसका माल है, जो इसका मालिक है, तो वो मालिक की मर्जी, जहां जाए उसको बांटे, जैसे चाहे दे। तो मालिक का हुक्म है कि इसे मेरी राह में खर्च करो। अल्लाह की राह क्या है? अल्लाह की राह ये है कि ज़रूरतमंदों पर, मोहताजों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, जो गरीब पड़ने वाले हैं उन पर उनका ख्याल रखा जाए, उन पर माल खर्च किया जाए और अल्लाह के दीन की इकामत के लिए भी पैसा खर्च किया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो तंजीमें हैं, जो जमातें हैं, जो अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, मुजाहिदा कर रही हैं, वहाँ भी खर्चे लगते हैं, वहाँ भी पैसा खर्च होता है। तो
वहाँ भी पैसा दिया जाए, वहाँ भी अपना पैसा खर्च किया जाए, ये माल सब अल्लाह की राह में खर्च कहलाता है। तो ये चीज़ है कि जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह का माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा, तो गोया कि वो कुरान से हिदायत हासिल कर सकता है, और उसी शख्स को मिलेगी कुरान से हिदायत जो इन बातों पर अमल करा। और जो किताब तुम पर नाजिल की गई यानी कुरान, हाँ, तो ये चंद प्रभाव बल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और जो किताब हमने तुमको दी है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं। यानी कि ये कुरान मजीद जो तुम पर नाजिल हुई है इस पर भी ये लोग ईमान लाते हैं, और तुमसे पहले जो किताबें नाजिल हुई गई, तौरात, इंजील, ज़बूर, इस तरीके की किताबें जो अल्लाह ताला ने नाजिल की दीगर पैगंबरों पर, उन पर भी ईमान रखते हैं, तो वो लोग इस कुरान से हिदायत पा सकते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। ऐसे ही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फला पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि ये जो इन बातों को मानेगा जो ऊपर बयान की गई है अभी, जो इन बातों पर ईमान लाएगा और इन पर अमल करेगा, उसी के लिए कामयाबी है, फलाह है। और असल में कुरान मजीद में कहा गया कामयाब वही है जो क़यामत के दिन कामयाब हो जाए, और नाकाम वो है जो उस दिन नाकाम हो जाए। जीता वो जो आखिरत में जीत गया, हारा वो जो आखिरत में हार गया। दुनिया की हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, ये सरासर एक इंसान की जहन का फतूर है। ये अलग बात है कि इंसान अपनी नादानी की बिना पर इस दुनिया में कामयाबी और नाकामी का तसव्वुर रखता हो। दुनिया की कोई अहमियत और अफादियत अल्लाह ताला की नज़र में नहीं है, इसकी कोई इज्जत व वक़ार अल्लाह की नज़र में नहीं है। अल्लाह तो कहता है दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं किसी काफिर को एक बूंद पानी तक न देता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इन बातों पर ईमान लाया उसी के लिए इस कुरान में हिदायत और रहनुमाई है, और वही फला पाने वाले हैं। ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो इन तमाम ही बातों पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।